Hello everyone, so I am back again with NCRT of Geography, NCRT of Indian Geography, right? So I'll be telling you the summary of the summary of chapter 1, ठीक है, of Indian Geography, class 11th. See, इसमें it has been told about India. इंडिया के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं. फ्रॉम 8 degree 4 north. Actually, India lies in the central part, South Asia. Central part in the central part in South Asia. ठीक है. 8 degree 4 minutes north, 237 degree 6 north. And the east and the west are see, these 8 degree 4 and 37 degree 6 are the latitudes. Now longitude are the easternmost and the westernmost longitude है. यहाँ पे होता है कि there is Kibithu in Arunachal Pradesh, the easternmost, and the westernmost is Guhar Moti. This is the place in गुजरात. ठीक है. तो इसका जो है जो लॉन्गिट्यूड है, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन गुजरात इज 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. ठीक है. And the IST is Indian Standard Time 82 degree 30 minutes. ठीक है. It is actually from Greenwich Mean Time 5.5 घंटे आगे है ये, because 1 degree is 4 minutes and it is 82 and a half. So 82 into 4, 328, और हाफ का अगर हम अकाउंट करेंगे so it would be 2 minutes. So it would be 330 minutes. 6 5s are 30 and 30 is so 5.5 hours हो जाएंगे ahead of Greenwich Mean Time. ठीक है. देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है. कंसिस्ट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान. 5 कंट्रीज. इंडिया के जो नेबर्स है, जो मैरिटाइम नेबर्स है, दे आर श्रीलंका, Maldives. Sri Lanka is separated by Gulf of Mannar and Pak State. ठीक है. देन हाँ, 12 nautical miles होते हैं टेरिटोरियल से आगे. 1 nautical mile क्वेश्चन आ जाता है. 1 nautical mile कितना है? 1 nautical mile is 1.8 kilometers और 1 statute mile is 1.6 kilometers. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है 8 स्टेट से पास करता है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, then it is Tripura, Mizoram. These are the 8 states, right? Then we can talk about, let me just check कि इसमें और क्या क्या. हाँ, USA has 7 time zones. India is the 7th largest country. तो जब ये 7th लार्जेस्ट है तो 6 कौन कौन से होएंगे इससे पहले? रशिया, कनाडा,
USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड अ गल्फ? लार्जेस्ट गल्फ वैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। स्ट्रेट इज विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज and separates land masses. For example, the Strait of Gibraltar. It is connecting Mediterranean and Atlantic, and it is separating Ceuta in Spain and Morocco in Africa. ठीक है। So this was all about chapter 1. Now we'll be doing chapter 2. See chapter 2 में हमारे पास it is about physiography of India, structure and physiography. So हमारे पास कैसे इंडिया को डिवाइड कर रखा है? See we have Himalayas, mountains है, 7 features है हमारे पास, right? Then we have northern plains, the alluvial plains, which are very fertile, which are actually known for agriculture. Then we have peninsular India. We have desert. We have islands. Coastal plains. And what we are left with? Himalayas, northern plains, peninsular India, coastal plains, desert, islands. And let me check, एक we are forgetting because there were 7 features. अच्छा, there are 6 features only भाई, 7 नहीं है, 6 features only. Mountains है, plains है, peninsular India है, desert है, coastal plains है, islands है। ठीक है, अब हम mountains की बात करते हैं। सबसे पहले हिमालयाज़ भी आ जाएगी इसके अंदर and other also. सबसे पहले इसका ना डिवीज़न जो NCERT में दिया हुआ है वो ऐसे डिवीज़न दिया हुआ है, द नॉर्थ वेस्टर्न और कश्मीर हिमालयाज़। इट विल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ काराकोरम रेंज, लद्दाख, ज़ंस्कार, पीर पंजाल, ये सारी रेंजेस हो जाएगी इसके अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न और कश्मीर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन फॉर करेवाज, फेमस फॉर सैफरन कल्टिवेशन। ठीक है। देन यू कैन राइट अबाउट कि हाँ, झेलम जो है ना, झेलम रिवर, झेलम पे भी है श्रीनगर, वुल्लार लेक भी है। ये मियांडर करता है इन द यंग स्टेज। जनरली जो मियांडरिंग होती है रिवर की, वो मियांडर कहाँ करता है? इन द मैच्योर स्टेज में करता है जनरली। बट ये एक्सेप्शन है हमारा कि झेलम रिवर जो है वो मियांडर करता है इन द यूथ स्टेज, इन द यंग स्टेज। ठीक है। Then you can write about Srinagar, done. हाँ, second classification is Himachal and Uttarakhand Himalayas. Himachal and Uttarakhand Himalayas. ठीक है। It consists of all the 3 ranges. That is the Great Himalayas, the Middle Himalayas, Middle or Inner Middle Himalayas और Lesser Himalayas and the Shivaliks. तो जो Middle Himalayas है या जो हमारे Lesser Himalayas है, ये हिमाचल में इनको कहते हैं हम, हिमाचल और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहेंगे, हिमाचल में हम इसको
इसको हम क्या कहेंगे हिमाचल में, धौलाधर, ठीक है। जहाँ सारे हिल स्टेशंस वगैरह भी है, रानीखेत, लैंसडाउन, मसूरी, कसौली एक्सेट्रा, अल्मोड़ा, ये सब यहाँ पे हिल स्टेशंस भी है इसमें, ठीक है। देन यू कैन राइट, हाँ हिमाचल, अच्छा ये वाले एक इनका है कि इनकी मतलब किन रिवर्स के बीच में लाई करते हैं। सो एक्चुअली दिस इज़ अ डिवाइड बिटवीन द इंडस रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम, बिकॉज इसका जो ईस्टर्न मोस्ट है इसका काली रिवर, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, रावी। तो इट विल कंसिस्ट ऑफ सतलुज, रावी, ब्यास, यमुना एंड काली। काली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, घाघरा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। सतलुज, रावी, ब्यास इज रिलेटेड टू इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ये होगी बिटवीन रिवर्स। हाँ यहाँ पे दून्स बहुत फेमस है, जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे द्वार्स फेमस हो गया, आगे हम पढ़ेंगे किस में द्वार्स फेमस। यहाँ दून्स बहुत फेमस है, देहरादून जो है ना वो हाईएस्ट है, इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट मेरा मतलब है लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स। देन हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़। सिक्किम हिमालयाज़ में वैसे कंचनजंगा इज विच लाइज, दार्जिलिंग में ऑब्वियसली टी प्लांटेशंस आर वेरी फेमस, हाँ दे आर एक्चुअली बिटवीन द नेपाल हिमालयाज़ इधर है वेस्टर्न साइड में, और फिर भूटान हिमालयाज़ इधर है, इसके बीच में वी हैव सिक्किम और व्हाट इज़ नोन एज सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज़। यस, अच्छा यहीं पे ही वी हैव द्वार फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास दून फॉर्मेशन था, यहाँ पे वी हैव द्वार फॉर्मेशन। दून फॉर्मेशन वाज इन हिमाचल उत्तराखंड, द्वार फॉर्मेशन इज इन दिस सिक्किम, in the Sikkim, Darjeeling Himalayas, ठीक है। द्वार फॉर्मेशन, सो ये दून फॉर्मेशन है और ये द्वार फॉर्मेशन है। ऑल्सो सिक्किम, दार्जिलिंग हिमालयाज में लेपचा ट्राइब्स आर वेरी फेमस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालयाज। अरुणाचल हिमालयाज़ के बाद एक और क्लासिफिकेशन रह जाएगी। अरुणाचल हिमालयाज़ की जो ओरिएंटेशन है ना, दैट इज़ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब इनकी ओरिएंटेशन जो है, हाँ इट इज़, इसके लोकेशन की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली इसकी ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में कौन से है, भूटान हिमालयाज़ है। सो भूटान हिमालयाज़ से लेके दीफू पास तक, Difu Pass is actually a tri-junction of Arunachal, Myanmar and China. Okay, this is done. Now we have Eastern Hills, the last classification, Eastern Hills and Mountains. It will actually consist of all for example Nagaland, Manipur, Mizoram, यहाँ पे we have from north to south.
We have various ranges. Nagaland में we have Naga Hills, Saramati. Manipur में we have Isu or Tempu, and there is also Lime Atoll. Mizoram में we have Lishai Hills, Blue Mountain, Phuang Phui, and also Mizo Hills. Barak River flows from Nagaland, Manipur, Mizoram, and then crosses Bangladesh. Bangladesh में it is known as Surma, and it joins Meghna. Meghna is actually formed from Padma and Jamuna. Padma, Jamuna forms Meghna. हाँ, there is one more thing. मणिपुर और मिजोरम का, मणिपुर का we'll write कि लोकटक लेक है, फुमडिस, and then there is Sangai deer. Mizoram is molasses. Molasses basin. देन हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स की जो क्लासिफिकेशन है, जो इसका हाँ, इसकी क्लासिफिकेशन इज़ भाबर, तेराई रीजन, भंगार एंड खादर रीजन. Bhabar region is the मतलब it is actually parallel to Shivaliks. Yes, parallel to Shivaliks, 8 to 10 kilometers. 8 to 10 kilometers parallel to Shivaliks. Then you can write हाँ, यहाँ पे river disappears. बड़े बड़े boulders होते हैं, that is why river disappears. Agriculture is not possible, and बड़े बड़े boulders होते हैं यहाँ पे. Terai region is a swampy, marshy region. 10 to 12 kilometers. River appears over here. ठीक है. Now it is Bhangar and Khadar. Bhangar and Khadar. New alluvium and old alluvium. Bhangar is old alluvium. Khadar is new alluvium. ठीक है. यहाँ पे it is actually new alluvium है, मतलब it is बार it is being flooded with that flood water. Flooded मतलब it is again and again being flooded. That is why it is always fertile. Bhangar is old alluvium. It is actually far away and it is not being flooded with, and it is not being flooded, right? Now peninsular India or peninsular plateau consists of basically 3 parts. Deccan Plateau, which is famous for black soil. Cotton can be grown over here. This is Deccan Plateau, right? Central Highlands. Central Highlands, see, Deccan Plateau is a region which is below Satpura, and Central Highlands is a region which is above Narmada. Above Narmada. So it basically includes Malwa, Bundelkhand, Baghelkhand, राइट. ये सारे जो है
ये इंक्लूड करता है, ऑल्सो विंध्यास एंड नॉर्थ ईस्टर्न एज वेल। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर देखा जाए तो इनके अगर एक्सट्रीमिटीज़ को पढ़ा जाए तो सबसे नीचे वाला एक्सट्रीमिटीज़ इज कार्डमम हिल्स। पेनिनसुलर इंडिया में एक्चुअली यहाँ से जो मेघालयन है, मेघालयन प्लेट्यू है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा कर्बी एंगलोंग है, दिस कर्बी एंगलोंग इज समथिंग विच लाइज इन असम, ये इसका एक्सटेंशन है। मतलब एक्चुअली दिस इज ब्रोकन, और आई शुड बी सेइंग दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड पेनिनसुलर बाय माल्डा गैप, माल्डा गैप और राजमहल गारो, राजमहल गारो गैप। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट इज गिर रेंज। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये इनके एक्सट्रीमिटीज़ है। फाइन, थार डेजर्ट, मरुस्थली कहते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर आर एफेमरल रिवर, विलुप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लूनी रिवर, इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली। देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न की बात करें तो दे आर सबमर्जेंट, ईस्टर्न की बात करें तो दे आर एमर्जेंट। दे आर ब्रॉड बिकॉज डेल्टा फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, बट ये नेचुरल पोर्ट्स यहाँ पे नहीं है पॉसिबल, नेचुरल पोर्ट्स नॉट पॉसिबल। मेजरली जनरली आर्टिफिशियल है, और बहुत कम है आर्टिफिशियल भी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड है, लेकिन वैसे अगर हम वैसे ये नैरो है बिकॉज यहाँ पे एस्चुरी फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल नर्मदा तापी। ठीक है, अब अगर हम आइलैंड्स की बात, अच्छा और एक बात कर सकते हैं हम यहाँ पे अभी, कि जैसे अगर ये हम देखें तो ये वाला रीजन इज़ कोरोमंडल, दिस इज़ मालाबार, दिस इज़ कोंकण कोस्ट, नॉर्दर्न सर्कार्स, उत्कल कोस्ट। एक ये बहुत फेमस है कयाल, कयाल कहते हैं इनको, हाँ लेट मी जस्ट चेक द नेम, इनको हम कयाल्स ही कहते हैं, कयाल्स आर बैक वाटर्स। ये यहाँ पे मालाबार में बहुत फेमस है। कयाल्स आर वेरी फेमस इज मालाबार, बैक वाटर्स है इन केरला। So this completes chapter 2 of Indian geography.